Hallelujah. हालेलुया। Today we want to see that because God is so concerned for the salvation of human beings, God has linked His presence to the preaching of the gospel. आज मैं देखना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर ने एक जोड़ बनाई है आपका प्रभु की उपस्थिति में बैठना और प्रचार देने में। When you say you are in the presence of God, जब आप बोलते हो कि आप प्रभु के उपस्थिति में हैं, you are- उसका मतलब ये है कि आप प्रचार भी दे रहे हो। it is in the context of the making of disciples that Jesus Christ said, "Behold, I am with you every day till the end of the ages." जब प्रभु ने ये बताया कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहूंगा, इसका वो उस क्षण पे बोला था जब आप जाके प्रचार करोगे और चेले बनाओगे। People stay in their homes, लोग अपने घर पे बैठे रहते they never हैं, tell anybody about Jesus. किसी को बताते नहीं है यीशु के बारे में। They say, "Jesus is with me." Hallelujah, Jesus is with me. मैं जानता हूँ यीशु मेरे साथ है, यही बोलते रहते हो, People दोहराते are रहते हैं, perishing all over them, all around them. और उनके चारों ओर लोग नष्ट हो रहे हैं। Now, I want to tell you that Jesus is with you, but the truth is that He is not. मैं चाहता हूँ कि ये बोलूं कि यीशु आपके साथ ही है, लेकिन सच बात तो ये है कि यीशु आपके साथ नहीं है। It's a painful thing to say. बहुत ही दर्दनाक चीज है मेरे लिए बोलना। My understanding of the scripture says that when you are preaching, मेरी जो समझ है बाइबल पढ़ के ये है कि प्रचार देने के वक्त you may not like it, you will not say that I'm wrong. You may not like it, I understand, but you won't say I'm wrong. आपको ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको ये समझना होगा कि सच है ये। When you preach the gospel of Jesus Christ, God is with you. जब आप प्रचार देते हो यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार, तब परमेश्वर आपके साथ है। Don't be upset with me, brother. मुझसे गुस्सा मत God is करिए। with you प्रभु परमेश्वर आपके साथ है when you are talking about Him to those who are lost. जब आप उन लोगों को बोल रहे हो सुसमाचार जो नष्ट हो रहे हैं। Can we do that? क्या हम कर सकते हैं? Can we do that? क्या हम कर सकते हैं? Can we ensure that we are sharing the gospel with people so that we can say, God is with me? क्या आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है जब आप प्रचार दोगे? He said, go and make disciples of all nations. उन्होंने ये बताया सारे देशों में जाओ और चेले बनाओ। Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. और उनको बपतिस्म दो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। Teach them to obey everything I have commanded you. और उनको सिखाओ हर कोई आज्ञा जो मैंने तुम्हें सिखाया है। Behold, I am with you every day till the end of the ages. जरूर मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक ये काल अंत ना हो। Go and make disciples of all nations and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teach them to obey everything I have commanded you. Keep. Behold, I am with you every day till the end of the age. That's what you keep. आप पहले का जो भाग है, जो जाओ चेले बनाओ, बपतिस्म दो उनको और सिखाओ उनको आज्ञा के बारे में पालन करने के लिए, उसको निकाल के बस आप दूसरी भाग को लेके बोलते हो कि हाँ हमेशा परमेश्वर मेरे साथ है। That's not true. ये सही चीज नहीं है। Are we together? क्या हम सहमत I love our church because we are intellectuals. So if you don't agree with me, say, Pastor, I don't agree. Are we together? हमारी कलीसिया में हर कोई जन जो है बहुत कुछ जानते हैं, इसीलिए आप मुझसे सहमत नहीं है तो आप बोल सकते हो पासवान मैं इससे सहमत नहीं हूँ। I have refused to preach to entertain you. I have refused. मैं कभी आपको एंटरटेन करने के लिए कभी मैं प्रचार नहीं दूंगा। Preach to you what I see. मैं वही चीज का प्रचार दूंगा जो मैं देखता हूँ। We preach the gospel. आपको प्रचार देना ही होगा। And we have the guarantee of the presence of God. तब जाके हमें गारंटी मिलता है कि हाँ परमेश्वर हमारे साथ है। This morning, आज की सुबह we want to tell you about the story of Jonah. योना के बारे में जो कहानी है उसके बारे में बोलना चाहते हैं। Because we have a lot of portions to read, we are just going to get into the message and we'll be reading those portions gradually so that to make things a bit easy. Father, I pray that today you open our hearts. पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे दिल को खोले Give us revelations. और हमें रेवलेशन दीजिए। Draw us to you, Lord. हमें आपकी तरफ खींचे प्रभु।
Bind us to you, Lord. हमें आपकी तरफ बांध दीजिए प्रभु, Possess us, Lord, और हमें हमारे ऊपर कब्जा कीजिए प्रभु, and use us, Lord. और हमारी इस्तेमाल कीजिए In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम, Amen. आमेन। In the time of the Old Testament, जब पुरानी वाचा का टाइम था, there was a nation called the Assyrians. असीरिया नाम का एक देश था, The Assyrians were very powerful और वो बहुत ही सामर्थी थे and they were very wicked. और बहुत चतुराई से भरा हुआ था, They were ruthless. That's बहुत how you say ज्यादा it, ruthless. कठोर दिल वाले थे। In fact, I don't even have the courage to describe the kind of thing they will do. और मुझे डर लगता है कि कैसे मैं उनके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करूं। I can just take one example. एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। When they will invade a city and they will overcome that city, they will defeat that city. जब वो एक शहर को कब्जा करते हैं, They will take the babies and the children of that city. वहां के जो बच्चे हैं और जो लोग हैं, Now, they bring them to the mountain where there are rocks. और वो माउंटेन के पास लेके आते हैं They will hold the babies by their feet. और बच्चों को पैरों में पकड़ते हैं They snatch their head on the wall, on the rocks. और ऐसे पर्वत के ऊपर बच्चों को फेंकते हैं और मारते हैं। Human beings. मनुष्य के बच्चे They were so wicked. उतने कपटी थे वो लोग। They will cut the head of all the men of that city, सारे जो आदमी थे उस शहर के, उन सब का गला काट देते थे tie it and drag it. और उन सबको बांध के खींच के लेके आते थे। Sometimes they will pile it and make a mountain with the head of human beings. सारे आदमियों की जो मुंडी है उसको लेके एक पर्वत बनाते थे। God was tired of them. परमेश्वर बहुत ज्यादा थक गए थे And he planned to destroy them. और उन्होंने ये योजना की कि उनको तबाह कर देना चाहिए। But there is a principle. But there is a principle लेकिन ऐसा एक प्रिंसिपल है that God has established and he himself is subjected to that principle. जो परमेश्वर ने बनाया है और उसके नीचे परमेश्वर आते हैं। He will not judge anyone without giving the person the opportunity of repentance. वो किसी को दंड देंगे नहीं जब तक उनको एक मौका ना दिया जाए मन फिराने के लिए। I want you guys to know that whenever you come to church on Sunday मैं चाहता हूँ कि आप सब जाने, जब भी आप रविवार को and you hear a message और मैसेज सुनते हो आप, that hit your conscience or that trouble your heart, God may be giving you an opportunity to say, Father, I am sorry. ये मैसेज के द्वारा जब भी आपके हृदय में कुछ आपको महसूस होता है, हो सकता है प्रभु आपको एक मौका दे रहा हूं ताकि आप पश्चाताप करें और आए। As a human being, एक मनुष्य होने के नाते I have lived my life with a lot of introspection. बहुत सारी चीजों को मैं गौर से देखता हूँ। I think a lot about how I do things. मैं बहुत ज्यादा सोच में लगा रहता हूँ। I began to do this even before I became a Christian. मैं एक ईसाई होने से पहले ऐसे ही था। I think a lot about my actions. I think a lot about my impacts, my attitude. I think a lot about myself, how I do things. मैं बहुत सारे चीजों के बारे में सोचता रहता हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, कैसे सब चीज हो रहा है I सबके came बारे to realize में। और मैंने ये एहसास किया है that somehow कैसे भी करके God has warned me about almost everything that has happened in my life. परमेश्वर हमेशा मुझे एक वार्निंग दी है कुछ भी होने के पहले से ही। I'm 49 years old. मैं अभी 49 का हुआ हूँ। More than ever, I am more turned towards my inside because whenever I have an impression, it has almost or very often turned to be right. मैंने जो भी मैं सोचता हूँ, जो भी मेरे ख्याल में आता है, हमेशा से मुझे ऐसा लगा है कि सबसे ज्यादा अभी पहले से ज्यादा कि कुछ भी गलत होता है तो मुझे Then I realized that God has spoken to me so often and I just my ideas. बहुत ज्यादातर परमेश्वर मुझसे बात किए हैं, लेकिन मुझे लगा है कि वो मेरा खुद का आइडिया था। So before God will use somebody outside of you to speak to you,
very often He has already spoken to you in your heart. जब परमेश्वर किसी और का इस्तेमाल करते हैं आपसे बात करने के लिए, उससे पहले ही परमेश्वर हमारे दिल में पहले बात करते हैं. If you are going to be destroyed, अगर आपको तबाह करने के पहले भी, before God sends someone to tell you, you must have felt in your heart that I may be destroyed. उनकी तबाह करने के पहले ही किसी को महसूस हो सकता है हमको कि उन्होंने कुछ किया है गलत. It's a principle. ये एक प्रिंसिपल है. God will not judge anyone without warning the person. किसी को भी परमेश्वर दंड नहीं देंगे जब तक उनको वार्निंग ना दिया जाए. God does not surprise people. किसी को परमेश्वर अचानक नहीं करते कुछ भी. You will feel it. पहले आपको महसूस होता Some है. circumstance will make you realize it. कोई चीज जब घटना होती है तो आपको एहसास You होता dream है. about it. फिर आपको सपना शायद आ सकता है, Before somebody will come and tell you about it. या किसी और के आके बोलने के If पहले. you are honest, अगर आप सच्चा इंसान हो, you will say yes. आप बोलोगे हाँ, I felt it, मुझे लगा था, or I realized it, मुझे महसूस हुआ था, or I dreamt about it. या मुझे सपना आया था. That's God. ये परमेश्वर है. So now, तो अभी I'm very careful about the impression that suddenly come into my heart. कुछ भी चीज मेरे हृदय में आता है तो मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूँ उसको देखना. You are in some state and suddenly you read something that is connected to that. आप कहीं पे हो और कभी अचानक आप कुछ पढ़ते हो जो इससे जुड़ा हुआ हो. God was tired of the Assyrians. परमेश्वर थक गए थे असीरिया के जनों का काम, And He has determined to destroy them और उन्होंने निर्णय लिया था कि उनको तबाह कर देना चाहिए because of their wickedness. क्योंकि वो बहुत ज्यादा चतुराई में थे और But कपटी He will not do it until He has sent His messenger to go and talk to them first. लेकिन वो तब तक नहीं करेंगे जब तक वो एक इंसान को वहां पे भेजे और बात करने के You लिए. see, I realize that the law in the world is very similar to God's law. मैंने ये समझा है कि जो लॉ जो है यहाँ पे जो दुनिया में है वो बहुत ज्यादा परमेश्वर के साथ मिलता है. If you are a terrorist, that is a wicked person who has blown up so many people, and you are arrested in the country of law, you will not be killed without being judged. Do we agree? You will always be judged, so that they will give you an opportunity to blame yourself, to justify or to repent before they judge you, before they sentence you. हमेशा न्यायी जो है किसी टेररिस्ट जिसने बहुत सारे लोगों का हत्या किया है, उनको पकड़ने के बाद उसको एक मौका दिया जाता है अपना सफाई देने के लिए, ताकि वो सफाई दे या फिर मन फिर होके वापस आए या कुछ भी, दंड देने से पहले उसको जरूर मौका दिया जाता है. So God sent His servant to Nineveh, the capital of Assyria. तो परमेश्वर ने निनवे की तरफ जो असीरिया का जो कैपिटल है वहां पे भेजा योना को. Go and tell them. और बोला जाओ और उनको बताओ. I have seen their wickedness. कि मैंने उनके सारे जो गलत कार्य है And I'm going to destroy them unless they repent. और उनको नष्ट कर देंगे जब तक वो पश्चाताप ना करे. Jonah said, Lord, you just better destroy them. तो योना ने बताया कि परमेश्वर बेहतर तो ये होगा कि उनको तबाही कर दो आप. You know all the terrible things that they are doing. क्योंकि आप जानते हो बहुत ज्यादा ही गलत चीज करते हैं वो लोग. So he said, I'm not going there. तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं नहीं जाने वाला वहां पे. You know what they have done? What they have done to us, the Israelites? आप जानते हो कि क्या असीरिया के जो लोग थे इजराइल लोगों के खिलाफ किए थे. Jonah refused to go and warn them against the wrath of God. योना ने बोला कि मैं नहीं जा सकता उनको जाके बताने के लिए जो प्रभु क्रोधित है. God sent him to Nineveh. परमेश्वर ने उनको निनवे की तरफ भेजा. He decided to run away to Tarshish. और उन्होंने निर्णय लिया कि वो तर्शीश की तरफ जाएगा. Now I want to draw your attention to the Bible says. मैं चाहता हूँ कि आपका अटेंशन जो है बाइबल में जो लिखा है उसके तरफ Verse जाए. 1 to 3. Nineveh chapter 1, Jonah chapter 1 verse 1 to 3.
The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed to Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. योना की किताब पहला अध्याय पहले आयत से लेके तीसरे आयत तक यहोवा का ये वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे के तरफ जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश के भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर के जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। आमीन। You see, when he refused to go to Nineveh, जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो निनवे की तरफ नहीं जाएगा, he was running away from the presence of the Lord. वो प्रभु के सम्मुख से भाग रहा था। Going to Nineveh was going to preach. निनवे जाने का मतलब ये था कि जाके प्रचार देना। Not going to Nineveh meant refusing to preach. निनवे ना जाने का निर्णय लेने का मतलब ये है कि उसको प्रचार नहीं देना है। And the Bible said that meant running away from the Lord. और बाइबल में ये लिखा है कि इसका मतलब ये है कि वो प्रभु के पास से निकल रहा था। Is that what the Bible says? क्या वो लिखा है बाइबल में आपके? Is it a fair deduction? क्या मैंने सही बोला है इसमें? Are you not surprised that by refusing to go to Nineveh, the Bible says he was actually running away from the presence of the Lord? निनवे की तरफ जाने के लिए मना करने का मतलब ये था कि प्रभु के सम्मुख से निकल जाना। When you go to preach, जब उसको सिखाने के लिए जाएगा, the Lord goes with you. तो तब परमेश्वर उनके साथ है। When you refuse to preach, जब आप प्रचार देने के लिए मना करते हो, you have run away from the Lord. आप भागते हो, You have run away from the Lord. प्रभु के तरफ से आप भाग रहे हो। As we make disciples of Jesus Christ, जैसे हम चेले हैं यीशु मसीह के, you pray for someone to be saved. किसी के लिए प्रार्थना करना, उनको उद्धार पाने के लिए, You talk to him. उनसे आप बात करोगे, You encourage him. और उनको उत्साहित करोगे, You help him to grow in the Lord. ताकि वो बढ़े प्रभु में, The God is with you. तब परमेश्वर आपके साथ है। Hallelujah. हालेलुया। Because you are expanding, you are working for the expansion of his kingdom. He is with you. क्योंकि आप राज्य का बढ़ावा के लिए आप काम कर रहे हो, तो परमेश्वर आपके साथ। You are doing the one thing that is dear to his heart. He is with you. आप ऐसा ही काम कर रहे हो जो प्रभु के लिए बहुत ज्यादा करीब है उनके दिल के। That, brothers and sisters, we must all grow in the Lord, and we must all be trying to lead somebody to the Lord. और इसीलिए भाई और बहनों, आपको बढ़ना चाहिए प्रभु में और किसी की अगुवाई करनी चाहिए प्रभु की तरफ लेके आने के लिए। You must train yourself अपने आप को ट्रेन करना चाहिए to redirect all your conversation to the Lord. ताकि आपका जो भी बातचीत है वो प्रभु की ओर आए। There was a time in my life I was specialized in that. We are talking about football. मैंने ऐसा एक क्षण था मेरी जिंदगी में जब हम We say yes. फुटबॉल के बारे में बात कर They रहे are very talented, and those talents are given to them by God. That's why we must give our life to Jesus. जो भी आपके अंदर जो टैलेंट है वो सब परमेश्वर ने दिया गया है, लेकिन उस सब का इस्तेमाल प्रभु के लिए करना चाहिए। I said to myself at the point in my life, and I'm so sorry that I'm going to go back to that. I said to myself, I'm not going to have 5 minutes of conversation with anyone without telling him about Jesus Christ. मैंने ये निर्णय लिया कि 5 मिनट भी मैं किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करूंगा जब तक मैं यीशु के बारे में ना बोलूं। I will enter into a taxi. In Cameroon, we have carpooling. So if you enter into a taxi, there are always different people. It's not like here. जब मैं मेरे देश में जब मैं कार में टैक्सी में जाता था तो बहुत सारे लोग साथ में थे। If I start talking with the people in the taxi, अगर मैं टैक्सी में जो भी लोग बैठे उनसे बात करने लगूं, I must tell them about Jesus. उनको मैं जरूर यीशु के बारे में बोलूंगा। Youngsters, there was a time in my life. नौजवानों, मेरे जिंदगी में भी एक ऐसा क्षण था। I will stand up in the bus. मैं बस में खड़ा हो जाता था
and begin to preach to them. और प्रचार देने लगता था. I have preached in buses, going from one city to the other. I have preached in buses, going from one place in one city to another same city. I have preached. मैं बस में खड़ा होके एक जगह से दूसरे जगह तक जाने वाले बसेस में जाके प्रचार देता था. That is to be in the presence of the Lord. उसका मतलब ये है कि प्रभु के सम्मुख उनके उपस्थिति में रहना. The Bible says बाइबल ये बताती है that he went to Joppa. कि वो योपा की तरफ चला गया. And then he took a ship that he was on the way to Tarshish. और वो एक जहाज में गया तर्शीश की तरफ जो जा रहा था. He was actually going to Tarshish, passed through Joppa. उसको तर्शीश की तरफ जाना था और योपा के ओर से गुजर रहा था. Now Joppa, the meaning of Joppa means beauty. योपा का मतलब यह है कि खूबसूरती. He was attracted by the beauty of the world. वो इस दुनिया की खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे. When you are excited about the beauty of the world, it will lead you to a ship that will sink you. आप जब इस दुनिया की जो खूबसूरती है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हो तो ऐसे एक जहाज में आप घुस जाओगे जहां पे आप डूबने लगोगे जिसके तरफ द्वारा. He went there. और वो गया. Then he bought his fare with his own money. उसने अपने खुद के पैसे से भाड़ा दिया. He entered into the ship. और जहाज में घुस गया. Going to Tarshish. और जाने लगा तर्शीश की तरफ. Away from the presence of the Lord. प्रभु के सम्मुख को उनकी उपस्थिति से दूर. A place where he will not preach the gospel. ऐसा जगह जहां पे उसको प्रचार नहीं देना. The question is this: Are we in Tarshish? Are you in Tarshish? सवाल तो ये है कि क्या आप तर्शीश में हो? Tarshish is a place where you don't preach the gospel. तर्शीश ऐसा जगह है जहां पे प्रचार न देना. You don't have to tell people that they need Jesus. वहां पे बताने की जरूरत नहीं है कि यीशु आपको जरूर यीशु चाहिए. On Saturday or on Friday, I had the opportunity. I was having tea with a lady. शनिवार को शायद से मैं एक औरत के साथ चाय पी रहा था. As soon as I sat, जब मैं बैठा, I began to talk about Jesus. मैं यीशु के बारे में बोलने लगा. Very quietly, I began to talk about Jesus. बहुत शांति के साथ मैं यीशु के बारे में बोलने लगा. That has been my strategy from the moment I gave my life to the Lord. I say I don't talk to any woman when we are two of us if it is not about Jesus. ये मेरा स्ट्रैटेजी हमेशा से रहा कि जब भी मैं एक औरत के साथ अकेला बैठता हूँ मैं हमेशा यीशु के बारे में बोलता हूँ. The preaching of the gospel has been my protection and my shield. जब मैं सुसमाचार सुनाता हूँ वही मेरे लिए एक सुरक्षा कवच बनता है. When we sit, we are just two of us. जब मैं बैठता हूँ सिर्फ हम दोनों हैं. I know if I don't bring God there in the next 2 minutes, I'm lost. अगर उसी क्षण को मैं परमेश्वर को लेके नहीं आता Oh, listen, young man. I know if I don't bring God there, I am compromising. I bring God there immediately. मैं परमेश्वर को उसी क्षण वहां पे लेके आता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए सही होगा. The moment I talk about God, all the demons of evil disappear. They run away. They scream and they go. जिस क्षण में मैं परमेश्वर के बारे में बोलने लगता हूँ सुसमाचार सुनाता हूँ तब तुरंत ही सारा जो शैतान का जो शक्ति है वो सब दूर भागने लगता है. That has been saved. और ये मेरा रक्षा का जो टिप है. Tarshish, where you cannot preach. क्या आप तर्शीश में हो जहाँ पे आप प्रचार नहीं देना चाहते? If you are in Tarshish, अगर आप तर्शीश में हो, God is not with you in Tarshish. जरूर परमेश्वर आपके साथ नहीं है God तर्शीश. wants to be with you in Nineveh. परमेश्वर चाहते हैं कि आपके साथ रहे निनवे में. Among those wicked people. और उन जनों के साथ जो गलत काम कर रहे हैं. He wants you to give them His message. वो चाहते हैं कि आप ये संदेश उन तक पहुंचाएं. So that they can be saved. ताकि वो उद्धार पाए. Because that's what He wants for them. क्योंकि वही चाहते हैं परमेश्वर
उनके तरफ से। The Bible says बाइबल ये बताती that है God did not make hell for human beings. कि परमेश्वर ने नरक इसीलिए नहीं बनाया मनुष्य को जाने के लिए, He made it for Satan and his demons. वो शैतान के लिए और दुष्ट शक्तियों के लिए बनाया है। Every human being who dies and goes to hell dies outside the will of God. जो भी जिनका मृत्यु होता है और वो नरक जाता है, वो प्रभु की इच्छा के खिलाफ। So think first when you open your mind and say to people, go to hell. That's a tragic statement. जरूर सोचिए जब आप बोलोगे किसी को जाओ नरक जाओ, ये बहुत ही गलत वाला स्टेटमेंट है। So this man, तो ये जन जो है, the servant of the Most High God, जो सेवक है महा परम प्रधान के, having the message of life, जिनके पास जिंदगी जीवन का संदेश है, he went to Tarshish, going through Joppa. वो योपा के ओर से तर्शीश की तरफ चला गया He removed his own money. और उन्होंने अपना खुद का पैसे को निकाला He paid the fare. और भाड़ा दिया। He paid to run away from God. Can you imagine? उसने पैसा दिया और भाड़ा पे कर दिया भागने के लिए प्रभु के उपस्थिति से दूर। Everything that we do to go away from God is more costly in the presence of God. जो भी हम करते हैं जो प्रभु के तरफ से दूर भागने के लिए, वो सब हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली बनता है। I'm going to repeat that. मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, Everything we do जो भी हम करते हैं to enjoy the presence of God, to build our relationship with God, is easier than anything we do to run away. जो भी हम करते हैं प्रभु के साथ एक लगाव का रिश्ता बनाने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए, वो सब कुछ भागने की प्रभु की तरफ से भागने के लिए से बेहतर है। कैसे हेल्प करता है? He went and paid आप खुद के पैसा लेके to run away from God. भाड़ा देते हो और भागते हो प्रभु की। Now let us see what's going to happen. देखते हैं The क्या first thing that happened, he went to sleep, पहले रात को exhausted. योना जो था थका हुआ था और सोया। When people are away from God, जब प्रभु की तरफ से आप भागते हो, they become tired बहुत ज्यादा थकते हो and they will sleep. I और mean, literally. सोते हो सही में। I have realized मैंने ये एहसास किया है after Sunday preaching like today, आज का जो रविवार जैसे मैं प्रचार देता I हूँ, want to sleep. मैं जाता हूँ सोने के लिए, It's very difficult. बहुत मुश्किल लगता है मुझे। I seem energized. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और एनर्जी मिला। Yesterday, कल को I had two prayer meetings. 2 प्रार्थना का सभा था। I finished the second one at almost 11 o'clock. I couldn't sleep. दूसरा वाला जो था 11 बजे तक मैंने खत्म किया। Oh, मैं because सो नहीं in the पाई presence of God, you are energized. You are energized. You are energized. क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में हमें ज्यादा एक नया महसूस करते हैं हम। This is a prophet. ये जो है एक नबी है। He entered into the boat, into the ship, वो जहाज में घुसा and he went to sleep. और सोने गया। Let us read it चलिए पढ़ते हैं। from verse 4. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God, and they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. The captain went to him and said, "How can you sleep? Get up and call on your God. Maybe he will take notice of us, so that we will not perish." 4 आयत से लेके तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो गया। परंतु योना जहाज से निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता को दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। आमीन। When he entered the ship, जब वो जहाज में घुसा, God began to resist him. परमेश्वर उनके विरुद्ध आने लगे। The Bible says that God sent a storm.
ये बोल रहे हैं कि आंधी भेजा गया था उनकी तरफ, because he has run away from him. क्योंकि वो भाग गया था मेरे सम्मुख से। The element of nature began to fight him. जो नेचर है उनके खिलाफ हो गए थे। Brothers and sisters, भाई और बहनों, we must be sensitive. There's nothing for nothing in the world. हमें थोड़ा सोच में होना चाहिए, कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो इस दुनिया में ऐसी होता A है। lot of things that are happening to us are warnings. बहुत सारी चीजें जो हमारे तरफ होती है वो एक तरफ तरीके से वार्निंग है। You must try to connect everything that happens in your life to God. What is God trying to tell me? सब कुछ जो हमारी जिंदगी में होता है उस सबको जोड़ देना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि क्या करना चाहते हैं परमेश्वर हमारी जिंदगी में। So Jonah was in the ship. God began to shake the ship. जब योना जहाज में बैठा होता, परमेश्वर जो है जहाज को हिलाने लगे। But he was so lost that he was sleeping deeply. लेकिन योना जो था बहुत ज्यादा गहरी नींद में पड़ा हुआ। Even unbelievers were praying. जो अविश्वासी जन थे वो लोग भी प्रार्थना में थे। Have you seen Catholics who are praying so faithfully? And you guys say you are born again, you are not praying? क्या आपने देखा है कि कैथलिक में जो लोग हैं बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं और आप जो born again है वो प्रार्थना में नहीं You लगे see रहते। Muslims, they are faithful in their 5 times prayers, faithfully. Now the believers, we believe in Jesus, 0 prayer. आप देखो कि कैथलिक के जो लोग थे वो बहुत ही निष्ठापूर्ण होके प्रार्थना में लगे रहते हैं, लेकिन जो विश्वासी है वो प्रार्थना All में the नहीं। unbelievers in that ship, they were crying out to their God. सारे जो अविश्वासी थे उस जहाज में वो सब अपने ईश्वर को दुहाई दे रहे They थे। were not praying to the one true God, but they were praying वो according to their knowledge. वो यहोवा से प्रार्थना नहीं कर रहे थे, लेकिन जिसको भी जानते थे उसको प्रार्थना कर रहे थे। This great prophet of God was sleeping ये महान जो नबी है वो नींद में था, away from the presence of God. प्रभु के सम्मुख से बहुत ही You दूर, became so sluggish, बहुत so ज्यादा insensitive that even unbelievers will come and say, "Oh, what are you doing? Pray!" Unbelievers. बहुत ज्यादा कठोर हृदय क्या हो गया था कि अविश्वासी जो थे आके उनको हिला के बोलने लगे कि आओ प्रार्थना करो। Unbelievers. अविश्वासी, You are supposed to teach them to pray. आपको सिखाना चाहिए उनको They कैसे are now the प्रार्थना में one लगे। telling, they are now the one telling you, अब वो Pray! अविश्वासी बोलने लगा कि "No, you should pray." जाओ प्रार्थना करो। क्या आप जानते नहीं हो कि प्रार्थना में Every लगे Sunday you रहना? have the Bible. Pray. हम हर टाइम आप बाइबल पकड़ते रहते हो, ये बोल रहे कि प्रार्थना में लगे रहो। If an unbeliever अगर एक अविश्वासी has one day given you a lesson, क्या आपको एक सीख सिखानी हो तो God was speaking to you. हो सकता है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं उनके द्वारा। God was speaking. परमेश्वर उनके द्वारा बात कर रहे हैं। When we begin to preach the gospel of Jesus, we will pray. जब आप सुसमाचार सुनाना शुरू करोगे तब आप प्रार्थना में When लगोगे। in your heart you have the burden that somebody should be saved, you will pray. अगर आपके हृदय में एक बोझ आने लगेगी कि किसी को उद्धार पाना है तो आप प्रार्थना में लगे रहोगे, Because God is with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होते हैं। When God उस is टाइम with you, you will be inspired to pray. जब प्रभु आपके साथ हो तो आपके अंदर से एक उत्सुकता जाग उठेगी कि प्रार्थना में लगे रहना है। So the people of the ship, but we are used to the sea. This kind of storm, we are not used to it. Maybe there is a problem. Let us find out who is causing all this. तो उस जहाज में जो मल्लाह लोग थे वो बोलने लगे कि हम तो इस समुद्र को जानते हैं, ऐसे तो आंधी कभी आता नहीं है। हो सकता है हमें प्रार्थना करके देखना चाहिए कि किसके वजह से, किस कारण ये आ रहा है। Verse 7 and 8. Then the sailors said to each other, "Come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity." They cast lots, and the lot fell on Jonah. So they asked him, "Tell us, who is responsible for making all this trouble for us? What kind of work do you do? Where do you come from? What is your country? From what people are you?" 7वें आयत से लेके तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा क्या उद्यम है? तू कहां से आया है और तू किस देश और किस जाति का है? आमीन।
the Lord fell on, they cast a lot and it fell on Jonah. उन्होंने चिट्ठी डालकर देखा और योना का नाम निकला उसमें। Also, you are the one responsible of our trouble. तो उन्होंने पूछा कि क्या आप जिम्मेदार हो हमारी जो विपत्ति है उसके लिए? The believers जो विश्वासी है are responsible greatly उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है बहुत ज्यादा of the trouble of this world. इस संसार में जो विपत्ति है उसके लिए। If we could pray, अगर आप प्रार्थना में लगे रहते, listen very carefully, brother. अच्छे से गौर से सुनिए भाई, If you were faithful to God, to our God, अगर आप निष्ठापूर्ण होके परमेश्वर की तरफ होते, a lot of natural calamities will not come. बहुत सारी दुर्घटनाएं जो इस दुनिया में होती है वो नहीं आती। A lot of troubles that come into this world are due to the unfaithfulness of the disciples of Jesus Christ. बहुत सारी जो विपत्ति इस दुनिया पर आती है वो इसलिए आती है क्योंकि जो चेले हैं यीशु मसीह के वो वफादार नहीं है। They are passive, वो ऐसे ही बिना हिले बैठे हैं, not praying. प्रार्थना में नहीं लगे रहते। They are passive वो कुछ नहीं करते हैं and they are. और प्रार्थना में भी नहीं लगे रहते। A lot of trouble that come to families बहुत सारी विपत्ति जो परिवारों में आती है are due to the absence of prayerful people, praying people in that family. वो इसीलिए आती है क्योंकि बहुत लोग जो परिवार के जो सदस्य है वो प्रार्थना में नहीं लगे रहते। The Bible says, बाइबल में ये बताता है God remembered Abraham and he saved Lot. कि परमेश्वर ने अब्राम को याद किया और लूत को बचाया। Abraham was a praying man. क्योंकि अब्राम जो था प्रार्थना में लगा रहता था His nephew was protected. और उनका जो बांजा था उसको रक्षा किया गया था। This is spiritual understanding, brother. ये एक आत्मिक समझ है। On the 12th, we are starting a fast. We are going to study the Bible deeply to see how we are connected, not only to our families. We are connected to cities. We are connected to the nation. We are connected to the world. इस आने वाले 12 तारीख से हम उपवास में लगे रहना चाहते हैं और उसी दौरान हम बहुत ज्यादा सीख मिलने वाली है बाइबल से और हम ये देखेंगे कि हम जुड़े हुए हैं बहुत सारी चीजों में इस दुनिया से, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनसे और इस देश से भी। In the book of Joshua chapter 20 verse 23, the Bible, because of the sin of one man, Achan, God punished the whole nation of Israel. यहोशू की किताब में ये बताया गया है कि एक जन के गलती से पूरे इजराइल के जो जन थे उनके ऊपर पनिशमेंट आ गया था। I now understand why it is written in the book of 1 John chapter 5 verse 2. The Bible says, if you love the brethren, obey the commands of God. इसीलिए पहला योना में लिखा है कि अगर आप प्रेम रखते हो परमेश्वर से तो अपने भाई से भी प्रेम रखिए। If you obey your family, obey God. अगर आप आज्ञा का पालन करोगे अपने परिवार के सदस्यों के साथ तो परमेश्वर का भी आप पालन करोगे। Because as you are faithful to God, God will protect your family. God will bless your family. जैसे आप निष्ठापूर्ण रहते रहोगे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर आपके परिवार को प्रोटेक्ट करेंगे। It has become fearful, brother. I now understand why somebody, because of one sin, because of your sin, God can destroy the whole world. Your sin. अब ये बहुत भयभीत वाली चीज है कि एक गलती से, एक पाप से पूरे दुनिया, पूरे देश का नष्ट हो सकता है। One day David made a census. He was not supposed to make the census. एक दिन दाऊद राजा ने एक सेंसस किया, उसको नहीं करना He was चाहिए। supposed to count on God. उसको ये परमेश्वर में विश्वास रखना चाहिए He था। was never supposed to make an inventory of the number of soldiers that he had. उसको कभी ये गिनती नहीं करनी चाहिए थी कि कितने सारे योद्धा हैं उनके पास। God was angry. और परमेश्वर क्रोधित थे। 10,000 Israelites were destroyed. 14,000 इजरायली लोग को तबाह किया गया था उस दौरान। David told God, I have sinned. Why do you destroy my people? तो दाऊद ने ये बताया कि परमेश्वर को कि मैंने पाप किया है, आपने उनको क्यों मार दिया। It's become fearful, brother. ये बहुत भयभीत वाली चीज है। You have to walk before God with fear and trembling. आपको डर के साथ और बहुत ख्याल रख के प्रभु के सम्मुख When I love you, चलना चाहिए। in my life I run away from sin. In my life, that means I love you. अगर मैं बोलता हूँ मैं आपसे प्रेम रखता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं अपनी जिंदगी में पाप से दूर भागता हूँ।
from the 12th of October, when we are fasting for 21 days, we are going to study it in the Bible. हम जब अक्टूबर के महीने में 12 तारीख से 21 दिन के लिए उपवास में लगे रहेंगे, इसके बारे में हम ज्यादा सीखेंगे बाइबल से। The people asked Jonah, what shall we do to stop this storm? तो लोग जो थे योना को पूछने लगा कि हम क्या कर सकते हैं ताकि आंधी रुक जाए। Jonah told them, take me and dump me into the sea. तो Be merciless. तो योना ने ये बताया, ये उत्तर दिया कि मुझे लो और इस समुद्र में डाल दो, फेंक दो। Take me मुझे लेके and throw me in that storm. That will appease the heart of God. मुझे इस समुद्र में फेंक दो, तब जाके परमेश्वर का जो क्रोध है वो रुक जाएगा। God is so upset for the believers who refuse to preach the gospel that He will allow persecution to come upon them. परमेश्वर उनसे एक विश्वासी से बहुत ही दुखित है कि जब वो प्रचार देने के लिए नहीं जाता है। Say, pick me up and throw me into the sea, and it will become calm. और उसने I know that it is my fault that this great storm has come upon you. उसने ये बताया 12वां आयत में लिखा है कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे कारण आई। Brethren, भाइयों, for the last 12 years that I am in India, पिछले 12 साल से मैं जब हिंदुस्तान में हूँ, I have made you make a prayer that has become a routine. मैंने ऐसा एक प्रार्थना बनाया है जो मेरे हर दिन मैं करता हूँ। Every Wednesday, हर कोई बुधवार for को the last 12 years, 12 सालों से I have fasted मैंने उपवास किया है and I have prayed. और मैंने प्रार्थना किया है Oh God, forgive us कि माफ कर दो प्रभु हमारे सारे पापों in को, this city, in this state, and in this nation. इस शहर में और इस स्टेट में और पूरे देश में। That was my little contribution. और वही मेरा एक छोटा तोहफा है Forgive our sins. कि हमारे पापों। Hallelujah. हालेलुया। We the believers, हम विश्वासी होके we are like Jonah. हम योना के जैसे हैं। Some of us have already been thrown out of the ship हमें से बहुत सारे लोग हैं जिसको जहाज से बाहर फेंक दिया गया है because of our passivity. क्योंकि हम कुछ करने के लिए, God has used unbelievers to throw us out of the bus. क्योंकि हम कुछ करना नहीं चाहते और परमेश्वर ने अविश्वासी को इस्तेमाल किया आपको फेंकने के Some लिए। of us are already inside in the depth of the sea, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समुद्र के नीचे में हैं, overwhelmed with trouble. बहुत सारी परेशानियों के बीच में। Some of us are already inside the whale, the big fish, बहुत सारे लोग बड़े मच्छ के बीच अंदर हैं, stuck, बहुत ही अटक गया हुआ bound in और the world. बांधा गया इस दुनिया में। Where are you, brother? कहाँ पे हो आप भाई? Because of your unfaithfulness, क्योंकि आप निष्ठापूर्ण नहीं something रहे, have come upon you. कुछ आया हुआ है आपके ऊपर Now you don't even know what to do. और आप नहीं जानते क्या करना चाहिए। But the good news is this, brethren. लेकिन जो सुसमाचार है वो ये है भाई, We can do like Jonah. हम योना की तरफ कर सकते। When Jonah was inside a fish, जब योना महामच्छ के अंदर था, he realized his mistake. उसने अपनी गलती का एहसास किया। Brothers and sisters, भाई और बहनों, let us avoid to go through pain and suffering before we realize that running away from God is a mistake. हमें दर्द और पीड़ा के द्वारा जाने के पहले हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम प्रभु के तरफ से भाग He was in the depth of the sea, in the जब- belly of a big fish. जब वो समुद्र के अंदर था, एक महामच्छ के पेट के अंदर, And from inside the fish, और उस महामच्छ के अंदर से he began to pray to God. वो परमेश्वर की तरफ दुहाई देने लगा। You see, when life is good, you will sleep. When trouble will come, you will pray. जब आपकी जिंदगी अच्छा हो तो आप बैठे रहोगे, और जब आपकी जिंदगी में कुछ कठिनाई आती है तो आप प्रार्थना में He लगेंगे। said, in my distress, I called to the Lord, and He answered me. Hallelujah. और ये बताया गया है कि दूसरे अध्याय के दूसरे आयत में, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा को दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। Wherever you are, friend, you can pray. Hallelujah. जहां पे भी आप हो भाइयों, आप प्रार्थना में Hallelujah. हालेलुया। Wherever you are, you can
can still pray and God will hear your prayers. जहाँ पे भी आप हो वहां से आप प्रार्थना में लगे रह सकते हो. He said, from deep in the realm of the dead, I called for help and he listened to my cry. Hallelujah. ये बताया गया है कि महामच के पेट के अंदर से वो दुहाई देने लगा यहोवा. I want you to tell your neighbor, pray, he will listen. Pray. मैं चाहता हूँ कि आप अपने बगल वाले Don't just die, pray. जाओ He will listen, he will listen. दुहाई दो और प्रार्थना Pray, he will listen. Hallelujah. और वो सुनेंगे जरूर. In the realm of the dead, I cried out to him and he listened to my cry. अधोलोक के उधर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली. Jonah prayed. योना ने He प्रार्थना said, की, Lord, I'm coming back to you. दुहाई दी और बोला कि मैं वापस आ रहा हूँ. The prayer of Jonah in Jonah chapter 2 is so beautiful. जो योना के जो दूसरे अध्याय में जो प्रार्थना लिखा है वो बहुत ही सुंदर है. Now listen to me very carefully. गौर से सुनिए मेरी बात को. He was praying and said, Lord, I'm coming back to your temple. और उन्होंने ये बोला कि मैं तुम्हारे मंदिर की तरफ I'm वापस आ coming रहा हूँ. back to praise you and to sacrifice to you. मैं तुम्हारी स्तुति करने के लिए और बलि देने के लिए आ रहा हूँ. I have vowed that I'm going to live a good life from now henceforth. मैंने मन्नत मांगी है कि मैं आपसे सही रीति में. Lord, I know that salvation is from you. Salvation is from the Lord. यहोवा मैं जानता हूँ कि उद्धार तुम्हारे तरफ से है, तुम्हारे से है. Lord, I'm going to be faithful to you from now henceforth. मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं जरूर निष्ठापूर्ण रहूंगा. I am coming back to you. मैं तुम्हारी तरफ वापस आ रहा हूँ. He was repenting. उसके अंदर एक पश्चाताप था. Let me tell you something. एक चीज बताता Bible हूँ. says, बाइबल में ये बोला है commanded the fish. कि परमेश्वर ने महामच को आज्ञा दी, Vomit him in Nineveh. That's why he is in my presence. उगल दे उसको ताकि वो वापस आए मेरे सम्मुख. Hallelujah. हालेलुया. God commanded the fish, vomit him to Nineveh. That way he is in my presence. परमेश्वर ने आज्ञा दी उस महामच को कि उसको उगल दे ताकि वो आए वापस मेरे. My understanding is that you want to come to me, Lord. Okay, come to me. Come to me to preach the gospel. मेरी समझ ये है इसमें से कि तुम क्या चाहते हो मेरे पास वापस आए. आओ मेरे पास तो प्रचार सुनाते सुनाते आओ. Most of us, we want to know whether we are in the presence of God or not. बहुत सारे जन ऐसा है जानना चाहते हैं कि क्या मैं प्रभु के उपस्थिति में हूँ. Go out, बाहर जाओ build a friendship, और दोस्ती बनाओ sit down with a person, और बैठो उसके साथ, open your mouth, मुंह खोल के tell him about Jesus. बताओ यीशु मसीह के At बारे that में. moment, और उसी क्षण you know for sure आप जरूर जान पाओगे you are in the presence of God. कि आप प्रभु के उपस्थिति में हो. The Lord commanded the fish to vomit Jonah in Nineveh. And he told me, Jonah! प्रभु ने उसको निनवे की तरफ महामच को उगलने के लिए बोला You want to come into my presence? और उसको बोला, योना क्या तुम मेरे उपस्थिति में आना चाहते हो? Great. बहुत अच्छी बात है. Go to Nineveh. Go to the great city of Nineveh and proclaim to it message I give you. और निनवे जैसा बड़ा शहर में जाओ और वो वाला संदेश उनकी तरफ लेके जाओ. मैं बोल रहा That is how I come back into my presence. और वैसे ही तुम मेरे सम्मुख वापस आओगे, Go and preach. जाओगे और प्रचार दोगे. Hallelujah. हालेलुया. I want you to tell somebody, go and preach. मैं चाहता हूँ कि Stop, आप अपने stop बगल wasting वाले your लोग से life. Go बोलो and कि preach. जाओ Stop और wasting your life. Go प्रचार and preach. अपना You are not टाइम telling बर्बाद him. करना Tell बंद him. करो और जाओ प्रचार दो. Hallelujah. हालेलुया. Stop wasting your life. Go and preach. अपनी जिंदगी बर्बाद करना बंद करो और जाओ प्रचार दो. Now, Jonah, अब योना जो है now he had no choice. उसके पास कोई और चारा ही नहीं Not to नहीं obey रहा. God had a lot of terrible consequences. बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसको. But his heart has not changed. लेकिन उसका जो हृदय था वो अभी तक बदला नहीं था. Listen, sometimes your emotions have no meaning. Forget about your emotions. Just do what God says. कभी कभार ऐसा हो सकता है आपका इमोशन जो है उसमें कोई समझ आएगी नहीं आपको, लेकिन वही चीज का आज्ञा का पालन करो जो Still doesn't like the यहोवा बताता Ninevites. It still doesn't like the Assyrians. योना जो है असीरिया के जन को बिल्कुल पसंद नहीं करते They are still very wicked people in his own eyes. क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही चतुर और कपटी थे. Oh, you are a servant of God. Just do what your master says. लेकिन योना जो था एक सेवक था यहोवा का, तो बस वही करना चाहिए जो स्वामी ने बताया. So Jonah preached one of the heartless message ever
तो योना ने ऐसा एक प्रचार Heartless. किया जो बहुत ही कठोर था, A message with zero grace. जिसके अंदर बिल्कुल अनुग्रह नहीं था। In 40 days, God will destroy this city. ये बोला कि 40 दिन में In यहोवा 40 days, God will destroy this city. सिर्फ 40 दिन में यहोवा निनवे को तबाह कर You देगा। wicked people, because of your sins, in 40 days, God will destroy this city. तुम सारे जो गलत चीज किए हो उसके वजह से यहोवा तुम्हें तबाह करने वाले हैं। 40 more days, and Nineveh will be overthrown. He was giving no hope to them. 40 दिन और इस पूरे शहर को उलट देंगे। But that was the message God has given him. लेकिन वही एक संदेश था जो परमेश्वर ने उसको दिया था। He had no emotions. उसके हृदय में कुछ इमोशन There नहीं, was no compassion. These people were wicked. He wanted God to destroy them. बिल्कुल भी दया नहीं था उसके हृदय में। बस वो चाहता था कि परमेश्वर That उनको was his तबाह will. कर दे। That was his will. वो उनका आत्मा था। And the will of God लेकिन प्रभु का जो इच्छा was था that he should preach. कि प्रचार दे, वो He put aside his own emotion उसने अपने खुद का जो ख्याल थे उसको and he went and हटाया delivered a heartless message of God without any feelings. और उसने ऐसा प्रचार दिया जिसमें कोई दया नहीं था, But because it was the message of God, क्योंकि ये एक संदेश था परमेश्वर से। the king's heart was touched. वहां का जो राजा है उनके हृदय को उसको छुआ। The Bible, बाइबल में ये बताया the है king said, God is going to destroy us. कि राजा ने ये बोला कि परमेश्वर जैकोब को तबाह करने वाले हैं। Indeed, we are wicked. जरूर हम बहुत ज्यादा ही गलत कर रहे हैं। Let us repent. चलो हम पश्चाताप करते हैं। Let us repent with fasting. हमें उपवास से मन फिरो के बाद Maybe this God will have mercy on us. हो सकता है यहोवा जो है हमें माफ कर दे। The king commanded that everybody should fast, even babies. और राजा ने ऐसा आज्ञा दी कि हर कोई मनुष्य पशु जो है उपवास में होंगे, Even animals. पशुओं भी, That everybody should humble himself before the Lord. ताकि हर कोई जन जो है ठाट ओढ़ के उपवास में लगे रहेंगे। When the king tore his clothes, जब राजा ने अपने खुद के राजकीय जो वस्त्र थे उसको he निकाला, took dust and threw on the so that it would fall on him और उसने ठाट ओढ़ा अपने ऊपर, to show God how sorry he was. और ये दिखाना चाहता था कि यहोवा को कि बहुत ही दुखित है वो, He began to walk in sadness. और बहुत दुख के साथ वो चलने लगा। The Bible says, बाइबल ये बताती है when God saw that they have repented, जब यहोवा ने देखा कि उन्होंने पश्चाताप किया, God forgave their abomination. उन्होंने जो भी घृणादायक चीज किया उन सब को माफ कर दिया And यहोवा God ने। decided, और यहोवा ने निर्णय लिया, I am not destroying them anymore. मैं कभी तुम्हें तबाह नहीं करूंगा। In spite of all the wicked thing that they have done, they have repented, I forgive. उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो भी उन्होंने किया हो गलत चीज, घृणादायक चीज जो था, वो सब के लिए मैं उसको माफ करता हूं और उसको भूल जाऊंगा। When God saw that they did what they did and how they turned from their evil ways, He relented and did not bring on them the destruction He had threatened to bring upon them. तीसरे अध्याय में 10वां आयत में ये लिखा है कि जब परमेश्वर ने उसके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे थे, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको उसको ना किया। Brothers and sisters, भाई और बहनों, God will forgive the worst of sinners जो भी पाप जो सबसे ज्यादा भी घृणादायक हो वो सब भी माफ हो सकता है if one repent from his heart. अगर वो अपने पूरे हृदय से पश्चाताप करे और मन फिरोए। Our God is a forgiving God. हमारे जो प्रभु हैं बहुत जल्द ही माफ करने वाले हैं। Hallelujah! हालेलुया। Our God is a forgiving God. हमारे जो परमेश्वर है वो बहुत ज्यादा माफ करने वाले We हैं। preach repentance, but we don't want anybody to be judged. हम पश्चाताप का संदेश देते हैं लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी को भी दंड मिले, We preach repentance because we want them to repent of their sins. क्योंकि हम ऐसे प्रचार इसीलिए देते हैं क्योंकि वो अपने पापों से मन फिरो के आए। We must preach हमें प्रचार देना चाहिए so that human beings will have an opportunity ताकि मनुष्यों को एक मौका दिया जाए बदलने के लिए and be saved. और उद्धार पाए। That's why the Bible says, और इसी वजह से बाइबल में ये बोला गया है
that if we don't preach, अगर हम प्रचार ना देंगे, God will put upon us the blood of those who are destroyed. परमेश्वर हमारे हाथ में डालेंगे वो उस खून जिसको वो तबाह करने वाले हैं, जिनको. The message of the gospel is a beautiful message. सुसमाचार का जो संदेश है बहुत ही खूबसूरत है. Yes, it starts with repentance to attack our conscience. जरूर वो मन फिराने के में स्टार्ट होता है ताकि हमारे जो अंतर आत्मा को But that message जागरण ends करे. with grace लेकिन वो जो है अनुग्रह के साथ अंत होता है to reveal to us the love of God. ताकि प्रभु का प्रेम जो है हमें दिखलाए. Hallelujah. हालेलुया. Brothers and sisters, भाई और बहनों, as we go through our daily life, Yes. let us be conscious that God counts on us. जैसे हम अपना जिंदगी जीते हैं हमें जरूर एहसास होना चाहिए कि प्रभु जो है हमें हमसे उम्मीद रखते हैं. Anybody who is committed to the preaching of the gospel with all his heart, जो भी प्रचार देने में पूरे निष्ठा रूप से रखते हैं रहते हैं, will experience an amazing presence of God in his life. वो जरूर प्रभु का जो उपस्थिति में बैठे रहते हैं और उनका जो सम्मुख रहते हैं हमेशा. Let's proclaim him. हमें बोलना चाहिए That those who don't know him have an opportunity to know him. ताकि जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं उनको एक मौका दिया जाए जानने के लिए. Hallelujah. हालेलुया. From next Sunday, अगले रविवार से I want you to testify here मैं चाहता हूँ कि आप एक साक्षी दो यहाँ पे of having preached the gospel to someone. किसी को प्रचार सुनाते हुए. From now henceforth in our church, अब से हम हमेशा हमारे share कलीसिया with में us one opportunity that you had to speak to someone about the gospel, about Jesus. ऐसे एक मौके का इस्तेमाल किया गया. गवाह दीजिए यीशु के बारे में बोलने के लिए आपने अगर That's when we are going to start. वहीं पे हम शुरुआत करने Just वाले tell us that you had a friend and you spoke to the person. ये बोलिए कि ऐसा एक दोस्त था तो आपका जिसको आपने बोला यीशु के बारे. Amen? आमेन. Let us stand up and pray. खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं. Maybe you have been in Tarshish. I want you to close your eyes and bend your head and begin to speak to God. Say, I'm sorry, Father. हो सकता है आप तर्शीश में हो, अपने सिरों को झुकिए और प्रार्थना में लगे रहिए और Maybe you are surrounded माफ with कीजिए. friends, but you never had a chance to speak to them about Jesus. हो सकता है आपके बहुत सारे दोस्त हो जिनके लिए कभी आपने मौका नहीं ढूंढा उनको यीशु के बारे में बताने. Maybe you have been going through some storms. हो सकता है आप कुछ कठिनाइयों के बीच में Maybe you have already been thrown in the sea. आपको किसी ने समुद्र में फेंका गया हो जैसा लग You रहा are already in the belly of a big fish. हो सकता है एक महामछ के पेट के अंदर हो आप. There seems to be no future. ऐसा लग रहा होगा कि आपका कोई फ्यूचर नहीं है. I want you to open your mouth and speak to God. He can still hear you. मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुंह को खोलो और प्रार्थना में लगे रहो. Bend वो your सुनेंगे head. जरूर. Begin to speak to God. Open your mouth and speak.